Our loving Father in heaven, we want to thank you for this morning session. मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये सुबह के समय हमें ये सेशन के लिए मौका दिया इसलिए। Father, we want to thank you for keeping us safe during the last week. मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पूरे पिछले सप्ताह तूने हम सबको सुरक्षित रखा इसलिए। Father, we are alive because of your grace. मेरे पिता, हम जिंदा हैं केवल तेरी ही आशीष के जरिए। Lord Jesus Christ, let everyone be blessed by this message. मेरे पिता, हर एक कोई इस मैसेज के जरिए आशीषित होने पाए। And let them be healed when they listen to the word of God. और जब वो तेरे वचनों को सुने तो तू उन्हें अपनी चंगाई को देना। Lord Jesus Christ, remove all the mountain-like problems in their life. मेरे पिता, चाहे पहाड़ जैसी समस्या उनके जीवन में क्यों ना हो, तू उसे खत्म कर। Father, we need the help of the Holy Spirit to understand thy word. मेरे पिता, हमें तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके। Father, we know apart from you, we can do nothing. मेरे पिता, हम तुझसे दूर हो के कुछ भी नहीं कर सकते। Lord Jesus Christ, bless everyone as they listen to the word of God. मेरे पिता, तू हर एक को आशीष करना जब वो तेरे वचनों को सुनेंगे तो। We ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नाजरी के नाम से चाहते हैं। आमीन। For today's meditation, let us read the Gospel according to Saint Luke, chapter 4, verses 16, 17, and 18. And he came to Nazareth where he had been brought up. And according to his custom, he entered on the Sabbath day into the synagogue and stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was handed over to him. And he unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to announce the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to send away in release those who are oppressed." हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 16 से 18 वचन पढ़ेंगे। फिर वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। Here we find Jesus inside a synagogue. और यहाँ पे हमने देखा है कि जो यीशु है वो खुद ही आराधनालय में था। It was a Sabbath day and Jesus stood up to read from the scriptures. और ये शब्द का दिन था और यीशु वहां पे खड़े हुए ताकि वो उस पुस्तक को पढ़ सके। And Jesus read from the book of Isaiah. और यीशु ने वहां पे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब से पढ़ा। He unrolled the scroll and found the place where it was written. और उसने वो पुस्तक को खोली और उस जगह को पढ़ा जहाँ पे ये लिखा हुआ था। That passage was about Jesus Christ himself. और वो जो लिखा हुआ था वो उनके बारे में ही लिखा हुआ था। Jesus was reading from Isaiah chapter 61 verses 1 to 2. और उन्होंने यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 61 अध्याय उसमें से उन्होंने पढ़ा था। That reading was fulfillment of the prophecy made by Isaiah about Jesus Christ. और वो जो भविष्यवाणी यशायाह ने यीशु मसीह के बारे में की थी वो पूरी हुई थी। And Jesus read, "The Spirit of the Lord is upon me." तब यीशु ने पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
because he has anointed me to announce gospel to the poor. और उसने मुझे ये अभिषेक किया है कि मैं जो गरीब हैं उनके लिए मैं सुसमाचार को सुनाऊं। He has sent me to proclaim release to the captives और उसने मुझे ये बोला है कि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं and recovery of sight to the blind, और मैं अंधों को दृष्टि दान करूं to send away in release those who are oppressed. और उन लोगों को छुड़ाऊं जो जिनको इस जगत ने कुचल दिया है। And verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord, the year of Jubilee. और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Here what we find is a description about the mission of Jesus Christ in this world. और यहाँ पे हमने ये देखा है कि प्रभु यीशु जब इस जगत में आया तो उसका क्या काम था। Important political parties before election, they declare, they release their manifestos. और जैसे कि यहाँ पे राजनीतिक जो पार्टी होती है वो इलेक्शन से पहले अपने जो भी उनके काम होते हैं वो उनको बताती है। A manifesto declares what the political party is going to do if they are elected. और वो एक जो राजनीतिक पार्टी जब अपने लिए लड़ती है तब वो बताती है कि उन्हें क्या क्या काम करेंगे जब वो जीतेंगे। Here, Jesus is declaring his manifesto. और वैसे ही यहाँ पे प्रभु बता रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है। Our Heavenly Father sent Jesus Christ to this world to save the sinners. और हमारे स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि वो पापियों को बचा सके। Jesus came here to comfort those people who are oppressed. और यीशु इस जगत में आया ताकि जगत ने जिन लोगों को कुचल दिया है उनको वो सहानुभूति दे सके। And here we read that the Spirit sent from the Lord is upon me. और यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आत्मा प्रभु ने उस भेजी है वो उसके प्रभु यीशु के ऊपर थी। That means Jesus was anointed. इसका मतलब ये है कि जो प्रभु है वो बहुत ही आश्रित थे। In ancient times, priests were anointed with oil to authorizing them to do the Lord's work. और पहले के टाइम पे जो पास्टर्स होते थे उनको तेल के जरिए अभिषेक किया जाता था ताकि वो प्रभु के काम कर सके। Jesus also played the role of a priest. और इसी तरीके से प्रभु यीशु ने भी एक पासवान का एक कार्य अदा किया। A priest intercedes for the people before God. और जो एक पासवान होता है वो प्रभु की ओर से उन लोगों की रक्षा करता है। The priest prays to God for the people. और जो पासवान होता है वो प्रभु के वचन बताता है लोगों को। So Jesus received the power of the Holy Spirit. तो इसी तरीके से यीशु को जो पवित्र आत्मा की ताकत मिली हुई थी That was sent by God from heaven. और जो ये आत्मा प्रभु परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से भेजी गई थी। And the people heard a voice from heaven during the time of baptism of Jesus Christ. और ये जो आवाज थी वो सब लोगों ने प्रभु यीशु का जब बपतिस्मा हो रहा था उस समय उस स्वर्ग से आवाज को सुना। This is my son, listen to him. ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। That was the declaration of God the Father about Jesus Christ. और यही वो बात थी जो हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कही थी। And the Holy Spirit came to Jesus Christ and landed on his body in the form of a dove. और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर उतरी कबूतर के रूप में। That was at the time of baptism. और ये वो समय था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था। Jesus was baptized by John the Baptist in the river of Jordan. और यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था यरदन नदी में। And everyone was surprised to see a dove descending from heaven on Jesus Christ.
और सब कोई उस कबूतर को उतरते हुए यीशु मसीह के ऊपर देखकर बहुत ही आश्चर्य हुए थे। And same Holy Spirit descended on the apostles at Pentecost. और यही वो आत्मा थी जो पेंतकोस्त के दिन उनके चेलों के ऊपर गिरी थी। Jesus was anointed by the Holy Spirit to show God's favor on Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा दी गई थी वो ये दर्शाती है कि परमेश्वर का साथ उनके पास था। Whatever Jesus preached is the word of God. और जो कुछ भी प्रभु यीशु प्रचार करता था वो था परमेश्वर के वचन। Jesus declared God has anointed him to preach good news to the poor. और यहाँ पे प्रभु यीशु ने बताया कि परमेश्वर ने उसे चुना है कि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाए। Who are the poor? तो ये कंगाल कौन है? This does not mean poor people without money. और ये नहीं बता रहा है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो कंगाल है। These are people who seek the Lord in complete submission. और ये वो लोग हैं जो पूरी अपनी आत्मा से परमेश्वर को खोजते हैं। The poor, repentant man bows before God. और जो लोग अपना पश्चाताप करते हैं वही लोग हैं कंगाल प्रभु की नजर। The poor, repentant person has nothing to offer for his soul. और जो कंगाल होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है अपनी आत्मा को केवल देने के लिए। There are people who are poor in spiritual things. और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं अपनी आत्मा में। They are poor in heavenly things. और वो गरीब हैं उन स्वर्गीय चीजों में। They are poor in divine things. और वो गरीब हैं आत्मिक चीजों में। Jesus addressed the poor in spirit. और यहाँ पे परमेश्वर ने ये सच्चाई बताई है कि जो लोग कंगाल हैं आत्मा में, That is those people who humble themselves before God. और वो लोग जो अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु के सामने। They admit they are unworthy people. और उन्होंने ये स्वीकारा कि वो कुछ किसी योग्य नहीं है। They are ready to accept the fact that they are sinners before God. और वो इस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है कि वो लोग पापी हैं प्रभु यीशु के सामने। These are the people who say sorry for their sins and violation of God's commandments. और ये वो लोग हैं जो अपने आप को माफी मांगते हैं परमेश्वर से कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। In the Bible, we read about the story of the prodigal son. और हमने बाइबल में उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुना है। He left the father after acquiring all the wealth. और उसने अपने पिता को छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति को लेकर चला गया। He wasted the money. और उसने सारी जो उसकी दौलत थी सब नष्ट कर दी। Because of his sinful life. क्योंकि वो एक पापमय जीवन को जी रहा था। And later on he realized that he made a terrible mistake. और उसके बहुत बाद में उसे ये एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। So he decided to return to his father empty-handed. और उसके बाद उसने ये निर्णय लिया कि वो अपने पिता के पास खाली हाथ ही जाएगा। He was ready to accept that he was wrong before God. और वो तैयार था इसको ग्रहण करने के लिए कि उसने गलत किया परमेश्वर की दृष्टि में। He repented of his sins. और उसने पश्चाताप किया अपने पापों से। And his father was waiting for his return. और उसका पिता उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। So anyone in this world who is prepared to accept that he was a sinner and repent before God, he will be accepted by God the Father. और इस संसार में अगर हम में से कोई है जो अपने पाप और अपराध को मानता है परमेश्वर के सामने कि उसने पाप किया है, तो परमेश्वर पिता उसे ग्रहण करने के लिए भी तैयार है। The Bible says all the persons living in this world in all generations are sinners.
बाइबल बताती है कि इस संसार में रहने वाले हर कोई, हर पीढ़ी के लोग जो है वो पापी हैं। People who violate God's commandments are called sinners. और जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें पापी कहा जाता है। The prodigal son did not try to justify him. और जो उड़ाऊ पुत्र था उसने अपने आप को सही साबित करने का कोशिश नहीं किया। So even though we are unworthy, God is prepared to accept us through Jesus Christ. तो हो सकता है हम किसी भी योग्य ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के जरिए ग्रहण करने के लिए तैयार। God is ready to forgive all our sins and trespasses. परमेश्वर तैयार है हमारे हर पाप और हर गुनाह को क्षमा करने के लिए। God wants each and every one of us to confess our sins. परमेश्वर चाहता है कि हम आप जो भी कोई हो अपने पापों को स्वीकार ले। So Jesus was sent to proclaim good news to the poor. तो प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा गया था ताकि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाए। So this good news is necessary for all persons in this world. तो ये जो सुसमाचार है वो हर एक सदस्य के लिए, हर एक इंसान के लिए जो इस संसार में है, बहुत ही जरूरी है। The rich people and the poor people, the learned and illiterate, everyone requires this good news. तो ये सुसमाचार हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, हर एक के लिए बहुत ही जरूरी है। Jesus said, God has sent him to proclaim freedom to the captives. और यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि उसे इसलिए भेजा गया है कि वो बंदी गृहों को छुटकारे का सुसमाचार दे। So Jesus brought freedom to people who are prisoners of sin and Satan. तो प्रभु यीशु इस जगत में आया वो आजादी देने के लिए जो अपने अपने पापों में जकड़े हुए हैं। Because of sin, everyone is condemned to death, eternal death. और हर एक कोई जिन्होंने जो पाप किया है उसके लिए वो जो अनंत जो मौत है उसका वो अधिकारी है। नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन में उस बदलाव को नहीं लाना चाहते हैं। In this generation also we find millions of people who live under slavery because of the ignorance about the freedom granted to them by Jesus Christ. और आज की जनरेशन में भी हम ऐसा देखते हैं, आज की पीढ़ी में भी बहुत सारे लोग हैं जो दासत्व का जीवन जी रहे हैं क्योंकि वो नजरअंदाज करते हैं उस आजादी को जो प्रभु यीशु के जरिए उनको मिली है। There is a war against Satan in this world. और जहाँ पे एक लड़ाई है इस संसार में शैतान और हमारे बीच में। Satan wants to make as many people as captives. शैतान चाहता है कि वो चाहे जितने भी लोग क्यों ना हो उसको वो कैदी बना के रख ले। The devil would hold people captives with no hope of escape. और जो शैतान है वो लोगों को कैदी बना के रख लेता है, उनको कोई भी आशा नहीं छोड़ता है जीवन में। When war breaks out between two nations, the soldiers belonging to the other country will be made captives. और जब दो राज्यों के बीच में जब लड़ाई होती है, जो दो राज्य जीतता है उसके सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। Here we find a war between the good people and also the people who are governed by Satan. और वैसे ही यहाँ पे लड़ाई है अच्छे लोगों के बीच में और उन लोगों के बीच में जिनको शैतान ने कैदी बना के रखा है। The Lord's people pray against satanic activities. और जो प्रभु के लोग होते हैं वो शैतानी जो कार्य होते हैं उसके विरोध में प्रार्थना करते हैं। We also announce the good news to the world to persuade the people to come out of their bondage. और हम सुसमाचार का भी प्रचार करते हैं उन लोगों के लिए जो उन बंदिशों में हैं, उन बंदिशों को छोड़ के परमेश्वर के पास आ जाए। So Jesus declared that his purpose was to proclaim freedom to the prisoners. तो यहाँ पे यीशु मसीह बताते हैं कि उनका कार्य इस जगत में यही था कि वो जो कैदी हैं उनके लिए वो छुटकारा लेकर आए।
In the life of a Christian, we find a human flesh is another enemy. और एक मसीही के जीवन में हम देखते हैं जो इंसानी जो शरीर होता है वो भी उसके लिए एक दुश्मन है। Throughout the lifetime of a Christian, he has a war against his flesh. और अपनी पूरी जिंदगी में एक मसीही जो होता है वो पूरी जिंदगी में अपने शरीर के विरोध में भी लड़ाई करता है। Flesh always persuades a man to commit sin. और जो ये शरीर होता है वो हमेशा इंसान को उकसाता है कि वो पाप करे। And because of sin, the spirit of man is dead. और इस पाप के कारण ही जो उसकी जो मनुष्य की जो आत्मा होती है वो मर जाती है। When we receive the Holy Spirit, we are made alive in spirit. और जब हमें पवित्र आत्मा मिलती है तो हम उस आत्मा में जीवित होते हैं। We need the power of the Holy Spirit and the Word of God for a rebirth. और हमें पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए फिर से जन्म लेने के लिए। And when we surrender our life to Jesus Christ, God will forgive all our sins and give His Holy Spirit power. और जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा देता है, अपनी ताकत को देता है। And we are made alive for eternal life. और हम उस अनंत जीवन के लिए हम जीवित किए जाते हैं। And we are also given a measure of faith by the Lord. और हमें जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें विश्वास भी मिलता है। See, a measure of faith is granted to every child of God. और जो ये विश्वास का जो पात्र होता है वो हर एक परमेश्वर के बच्चे को दिया जाता है। And it's a faith that will see God in person forever. और ये वो विश्वास होता है जो हम अपने जो लोग होते हैं वो परमेश्वर में दिखते हैं हमेशा के लिए। Until then, we have the spiritual freedom as children of God, children of promise. और जब हमें वो आजादी मिलती है तब तक जब तक हमें वो परमेश्वर की जो वाचा मिलती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। And Jesus also declared recovery of sight to the blind. और परमेश्वर ने ये भी, यीशु मसीह ने ये भी बताया कि वो अंधों को दृष्टि देने के लिए आया है। We find the people who are physically blind and also people who are spiritually blind. और हमने देखा है ऐसे लोगों को भी जो शारीरिक रूप से अंधे होते हैं और दूसरा एक आत्मिक रूप से भी अंधे होते हैं। Lord Jesus Christ bless each and every one of you with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। Let us pray. आइए हमसे प्रार्थना करें। Lord Jesus Christ, we thank you for coming to this world to save the sinners. मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस जगत में आया ताकि तू उन पापियों को क्षमा कर सके। Lord Jesus Christ, we thank you for destroying the power of Satan and death. मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने उस शैतान के कार्यों को हटाया और उस मौत को भी। We thank you for the privilege of being children of God because of your sacrifice on the cross. मेरे पिता धन्यवाद करते हैं तूने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। मेरे पिता उस त्याग के जरिए तूने हमें अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। Lord Jesus Christ, we give you all the glory and honor. Amen. सारी महिमा सारी इज्जत हम आपको देते हैं। आमीन। May the love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be upon all of you forever. Amen. परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता आज से लेकर आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।